Today we'll see anti-Parkinson drug or drug used in the Parkinson disease. It is a kind of neurological disorder where there is a degeneration of particular type of neuron. So it is a neurodegenerative disorder. Please mute yourself now. Neurodegenerative disorder. Degeneration of neuron means what? Degeneration of neuron म्हणजे काय? Means क्या होता है? So there is a destruction of neurons. There is a loss of functional ability of neuron. So that is known as a degeneration of neuron. Now Parkinsonism is a kind of neurodegenerative disorder in which there is a selective destruction of dopamine containing neuron in the particularly substantia nigra part of your brain. Substantia nigra part जो होता है आपके ब्रेन में, वहाँ पे या ये जो डोपामाइन कंटेनिंग न्यूरॉन होता है, डोपामाइन क्या है? इट इज़ अ बायोजेनिक अमाइन. उसको अपन क्या बोलते हैं? कैटेकोलामाइन बोलते हैं. ठीक है. सो मेटाबॉल ओके. सो डोपामाइन इज अ inhibitory neurotransmitter in the brain, and the neuron containing dopamine as a neurotransmitter, they are known as a dopaminergic neuron, and there is a destruction of dopaminergic neuron in this disease. Okay, now the destruction may be because of the age related, the destruction may be because of the some drugs, the destruction may be because of the certain toxins, the destruction may be because of the anti-human disease. ये डिस्ट्रक्शन बहुत सारी चीज़ हो सकता है, कॉज बहुत सारी चीज़ होता है हो सकता है. So, अगर आपने कोई टॉक्सिन खा लिया तो उसकी वजह से भी डोपामाइन कंटेनिंग न्यूरॉन्स का डीजनरेशन हो गया तो आपको पार्किंसन हो जाएगा. सपोज आपका एज हो चुका है, एज बिकॉज सो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ बिकॉज ऑफ द एजिंग. सो एज जितना ज़्यादा हो जाएगा, आप जितना ज़्यादा बूढ़े हो जाओगे, उसमें पार्किंसन का सिम्टम्स आ जाता है. सो देयर इज अ सिलेक्टिव डीजनरेशन डिस्ट्रक्शन ऑफ डोपामाइनर्जिक न्यूरॉन in the particularly substantia nigra part of your brain and mesolimbic system. So in that substantia nigra mesolimbic system, so these acetylcholine and dopamine, they work in a coordination manner. So they balances the particular activity. Okay, so your dopamine and acetylcholine, ये दोनों न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो इसमें सबस्टेंशिया नाइग्रा पार्ट में या फिर आपका थैलेमिक रीजन में, वो दोनों बैलेंसिंग करते हैं. एक होता है एक्साइटेटरी, एक होता है इनिबिटरी. तो आपका जो डोपामाइन है, डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर, डोपामाइन होता है इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, और एसिटिलकोलिन क्या होता है? आपका एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर. नाउ दीज टू वर्क्स इन अ सिंक्रोनस मैनर, एंड इफ देयर इज इनबैलेंस बिटवीन दिस, तो इनबैलेंस नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन अगर डोपामाइन कंटेनिंग न्यूरॉन जो होते हैं, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन, उनका डीजनरेशन हो गया तो ऑब्वियसली एसिटिलकोलिन का लेवल वहाँ पे वो टेक ओवर कर देगा. ठीक है ना. दो भाई है, अगर एक का देहांत हो गया तो सब प्रॉपर्टी किसको मिलेंगी? दूसरे को मिलेंगी. मतलब वो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाएगा, वैसे ही होता है. ठीक है. सो डोपामाइन एंड एसिटिलकोलिन दे वर्क्स इन अ सिंक्रोनस मैनर इन द ब्रेन. एसिटिलकोलिन इज अ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, dopamine is an inhibited neurotransmitter. Now, because of the degradation, because of the loss, because of the degeneration of dopamine containing neuron, okay, so what happen? Acetylcholine takes over. Okay, तो वहाँ पे डोपामाइन का लॉस होता है, डोपामाइन डिजनरेशन होता है न्यूरॉन्स का, और उसके कारण क्या होता है? एसिटिलकोलिन ज़्यादा अपना एटीट्यूड दिखाता है, इट विल एक्ट मोर. ओके, नाउ व्हाई देयर इज अ डिजनरेशन ऑफ डोपामाइन कंटेनिंग न्यूरॉन? So there are different reasons. So first reason I have told you, it is because of the age. So it is related with the aging. Second reason for dopamine degeneration or dopaminic neuron degeneration is again certain drugs. So particularly antipsychotic drugs. So they can cause this Parkinsonism. They can cause deficiency of dopamine because they are dopamine receptor blockers. So antipsychotic drug जो होते हैं वो डोपामाइन का deficiency कर सकते हैं, जैसे मेक्लोप्रोपामाइड, देन बाकी जो भी हेलोपेरिडोल, क्लोरप्रोमेजिन वगैरह, all these drugs they can cause Parkinsonism. Certain drug induced Parkinsonism is there. Then why there is again loss of this dopamine neuron? It may be because of the toxins. एक टॉक्सिन होता है, वो टॉक्सिन अगर आपके इसमें आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल वो टॉक्सिन मोस्टली कहाँ पे आता है? सो देयर इज वन टॉक्सिन, आई विल टेल द नेम ऑफ दैट टॉक्सिन. सो द टॉक्सिन इज फाउंड इन द सर्टन ड्रग ऑफ एबूज. जैसे होता है कोकेन, हीरोइन, है ना, तो उसमें वो एज अ इम्प्योरिटी आता है, और वो अगर वो ड्रग के साथ में अगर वो इम्प्योरिटी आ गया, इम्प्योरिटी का नाम बोलता हूँ मैं आपको, सो वो भी क्या करता है? डीजनरेशन ऑफ डोपामाइनर्जिक न्यूरॉन. सो देयर आर डिफरेंट रीजन, ड्यू टू एजिंग, ड्यू टू बैड हैबिट्स, ड्यू टू एक्सीडेंट और ड्यू टू हिमेटोमा. अगर ब्लड क्लॉटिंग हो गया डोपामाइन न्यूरॉन के आसपास, तो
Another reason is arteriosclerosis. So if there is arteriosclerosis, so that also leads to your destruction of dopamine containing neuron. So after all, what is the Parkinsonism? So it is a neurodegenerative disorders where there is a loss of dopamine containing neuron. There is a loss of dopaminergic neuron in the substantia nigra part of your brain and thalamic neurons. Okay. So what happens because of the lack of dopamine? So what happens? So acetylcholine overactivity is seen. तो डोपामाइन का लैक होता है, कम होता है, डोपामाइन डिफिशिएंसी होता है और एसिटिलकोलिन ज़्यादा एक्टिविटी करता है. एंड बिकॉज ऑफ दिस these are the there is the symptoms of Parkinsonism. Now what are the symptoms of Parkinsonism? So there is a generalized akinesia. एक टर्म होता है आपका akinesia. What is mean by akinesia? there is a decreased motor movement. akinesia एक पहला टर्म होता है आपका akinesia. So आपको आएगा बाद में. So akinesia is the symptom. Then again another symptom is the tremors. T लिखता हो यहाँ पे, tremors. Then rigidity, muscular rigidity. You can see rigidity. Akinesia, tremors, muscular rigidity. Then inappropriate posture. ठीक है, posture जो उसका वो inappropriate रहेगा. Inappropriate posture, masked face expression, masked facial expression, or you can easily say like that. Face will be seen like mask. Okay, mask like face. Then again there is a tingling in the moment. There is a tremors. Okay, then there is a very limited movement of your limbs. Okay, that is fixed elbow and wrist. Movement नहीं होता. Okay, there is a loss of muscle tone. There is a loss of muscle tone. Though if some sort of tone is present, that person is not able to do activity in a normal way. Okay, then stopped posture, facial, okay, masked face expression, rigidity देखो आपका मसल जो है ना फ्लेक्सिबल होता है, एकदम इजीली फ्लेक्स होता है, फ्लेक्सिबल मसल है ना. अगर आपका मसल फ्लेक्सिबल नहीं तो उसको बोलेंगे रिजिड. सो देयर इज अ मस्कुलर रिजिडिटी, एटोनिया. आपका जो मसल होता है उसका टोन होता है प्रॉपर, उसका एक स्ट्रेंथ होता है. सो देयर इज अ लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, रिजिडिटी, स्टॉप पोस्चर मतलब आगे झुक के चलेगा ये आदमी, आगे झुक के चलेगा. देयर इज अ शेकिंग ऑफ हैंड्स एंड लेग्स. सो उसको बोलते हैं ट्रिमर्स, इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ योर मसल्स, ट्रिमर्स. ओके, फॉरवर्ड टिल्ट ऑफ टंग. फॉरवर्ड टिल्ट ऑफ टंग मतलब देखो ये आगे झुक के चलेगा. ओके, आगे झुक के चलेगा ये पार्किंसन का पेशेंट. रिड्यूस्ड आर्म स्विंगिंग मतलब जैसे बॉलिंग करते हो आप, जब गेंद फेंकते हो क्रिकेट में तो आपका आर्म का स्विंग बहुत पूरा होता है, लेकिन इनका आर्म का स्विंग कम होता है. सो देयर इज अ डिक्रीज्ड आर्म स्विंग. ओके, देन स्लाइटली फ्लेक्स्ड हिप एंड नी. यहाँ पे देखो उसका जो हिप नी होता है, हिप बोन एंड हिप नी, वो देयर इज अ लिटिल बिट फ्लेक्शन मतलब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्शन रहता है. सो देयर इज अ फ्लेक्शन, स्लाइटली फ्लेक्स्ड हिप एंड नीज. देन ट्रिम्बलिंग इन द एक्सट्रीमिटीज, दिस इज टिंगलिंग. ओके, शेकिंग होते रहेगा. शफलिंग शॉर्ट स्टेप्ड गेट मतलब धीरे धीरे एक ज़्यादा लंबा पैर नहीं उठाएगा. ओके, स्टीप्ड गेट, शिपलिंग एंड स्टीप्ड गेट मतलब बहुत बड़े बड़े लंबे पैर डाल के चल नहीं सकता वो ऐसा नज़दीक पैर रख के चलेगा. दीज आर द सिम्टम्स ऑफ, अगेन दीज आर द सिम्टम्स ड्यू टू डिक्रीज्ड डोपामाइन कंटेंट. देखो पार्किंसन का सिम्टम्स दो कारण से आता है. पहला आता है आपका डोपामाइन का डिफिशियंसी, उसकी वजह से ये सिम्टम आएगा. पोस्चर स्टॉप, रिजिडिटी, फ्लेक्स्ड एल्बो एंड रिस्ट. ओके, अकाइनेशिया. ओके, देन ट्रिमर्स. ओके, रिजिडिटी, स्टॉप्ड पोस्चर, tingling and shaking of this. Now another symptoms are because of the excessive activity of your acetylcholine. तो ये बैलेंसिंग में होता है acetylcholine एंड डोपामाइन. डोपामाइन कम हो गया तो acetylcholine आगे आता है, फिर हल्ला कर देता है. ठीक है, हल्ला कौन सा करता है, फिर मैं ही भगवान हूँ, अपन ही भगवान है. तो फिर acetylcholine ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, यू नो दैट acetylcholine अगर ज़्यादा होगा तो सब सिक्रेशन बढ़ा देगा. ठीक है, सो देयर इज इंक्रीज इन द लैक्रिमेशन. चलते चलते उसके आँख से आंसू गिरेंगे, चलते चलते उसका सलाइवेशन निकलेगा. सो साइलोरिया, सिबोरिया, एक्सेसिव सीबम. ओके, टीयर्स विल बी अपेयर इन द आईज. देन एक्सेसिव
activity of acetylcholine. Because of that there is excessive GIT peristalsis. So वहाँ पे पेरिस्टासिस ज़्यादा होगा, मतलब ओके वहाँ पे उसका क्या होगा, डायरिया, वोमिटिंग, नोशिया, ये तो चलेगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ द डोपामाइन इन द सेंट्रल, डोपामाइन की वजह से भी वो नोशिया होता है, बिकॉज इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द केमोरेसेप्टर ट्रिगर्सोन. So deficiency of dopamine in the CTZ leads to nausea, vomiting, etc. Again, diarrhea is because of the excessive acetylcholine activity. So these are the symptoms. Basically, Parkinson is nothing but the neurodegenerative disorder where there is a generalized lack of dopamine, and that is due to different reason. As I told you, most of the time it is because of the aging. Aging. Sometimes it is also because of the drugs. Sometimes it is because of the arteriosclerosis. Sometimes it is because of the certain drug of abuse. Okay, so this is nothing but the Parkinsonism. ठीक है. So there is one movie in the Bollywood. आपने एक बॉलीवुड में एक मूवी था 90s के टाइम पे, उसका नाम था राजा. और राजा मूवी में एक माधुरी दीक्षित एक एक्ट्रेस होती है, लीड एक्ट्रेस. उसके बाद में आपका संजय कपूर एक्टर होता है, परेश रावल उसका भाई होता है. तो परेश रावल को ये पार्किंसन का पेशेंट दिखाया गया है उसमें. परेश रावल पार्किंसनिज्म का पेशेंट नहीं है, तो अब ऐसा नहीं. सो आपने देखो पार्किंसनिज्म जिसको हो गया ना, सो ही कैन नॉट एक्सप्रेस द एक्सप्रेशन थ्रू हिज फेस. तो एक्टर को अगर पार्किंसनिज्म हो गया ना तो वो एक्सप्रेशन नहीं दे पाएगा, ठीक है. सो अगेन क्योंकि उसमें मसल का कॉन्ट्रैक्शन है ना, जो वो लॉस होता है, मसल टोन लॉस होता है. सो मसल बिकम रिजिड and he cannot do the movement properly. There is a fixed movement of your hand, wrist, etc. So swing is also reduced. So there is a continuous shaking of your body, tremors, rigidity, okay, loss of muscle tone, akinesia. Then posture is not correct. Straight नहीं खड़ा रह सकता, झुक के खड़ा रहना पड़ेगा. So that is nothing but the Parkinsonism. That are the symptoms of Parkinsonism. So it was described by first time by a scientist known as James Parkinson in 1817. 1817 में जेम्स पार्किंसन नाम का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने ये पार्किंसोनिज्म डिस्क्राइब किया था. एंड दैट्स व्हाई फ्रॉम दैट डे ओनली सो द डिसीज इज नोन एज अ पार्किंसन डिसीज. सो इट वाज डिस्क्राइब बाय फर्स्ट जेम्स पार्किंसन इन 1870, राइट. नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ दिस पार्किंसोनिज्म? सो दे आर akinesia मीन्स लॉस ऑफ मोटर मूवमेंट, ठीक है. मोटर जो मूवमेंट होता है, सो सेंसरी मोटर ना होता है. सो मोटर मूवमेंट, लॉस ऑफ मोटर मूवमेंट, डिक्रीज्ड मोटर मूवमेंट, नॉट अ कंप्लीटली लॉस, डिक्रीज्ड मोटर मूवमेंट इज नोन एज akinesia. मस्कुलर रिजिडिटी, योर मसल शुड बी फ्लेक्सिबल. आपका मसल जो होता है फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन के लिए. सो कॉन्टैक्ट रिलैक्सेशन होने के लिए फ्लेक्सिबल मसल लगता है. बट ड्यू टू लैक ऑफ डिफिशियंसी और ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ डोपामाइन, सो मसल बिकम रिजिड, आपका रिजिड होगा, मतलब वो फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा. देन पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, पोस्चर जो है आपका वो स्टेबल नहीं रहेगा. लॉस ऑफ एसोसिएटेड मूवमेंट मीन्स वही ना कि प्रॉपरली उसका ये नहीं रहेगा. सो ही विल लॉस इज इंटरेस्ट फ्रॉम द सराउंडिंग, ओके, एंड he will not able to do coordinated activities. His muscle weakness will be there, generalized weakness of muscle, tingling, okay, tremors, akinesia, muscular rigidity. These three are the main symptoms. Siluria, seborrhea, excessive salivation. These are the again another symptoms. Excessive salivation क्यों होगा? Because there is a deficiency of dopamine and there is a extra activity or over activity of acetylcholine. Because acetylcholine dopamine क्या करता है, दोनों बैलेंसिंग में रहता है. अगर एक कम हो गया तो दूसरा ज़्यादा होगा. सो लाइक इन द नर्वस सिस्टम, लाइक योर थैलेमिक एरिया एंड सबस्टेंशियल निग्रा एरिया. एक्सेसिव सलाइवेशन, एक्सेसिव सीबम, सिबोरिया और साइलोरिया. देन मूड चेंजेस, liver damage, they are the other symptoms of your Parkinsonism. What is the pathophysiology of this Parkinsonism? क्या होता है exactly Parkinsonism में? So it is also because of the, I have told you there are different reason for Parkinsonism. Due to aging, सबसे बड़ा रीज़न वही है कि फर्स्ट रीज़न इज एजिंग. जैसे जैसे आप बूढ़े हो जाओगे आपके ब्रेन का फंक्शनिंग कम होते जाएगा. सो डीजनरेशन ऑफ योर डोपामिनर्जिक न्यूरॉन और डिस्ट्रक्शन ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन, एंड देयर इज अ डिपोजिशन ऑफ दैट, there is deposition of some degradation product and it is described as a Levy body. इसको लेवी बॉडी बोलते हैं. वो जो डिग्रेडेशन हो चुका है, डिस्ट्रक्शन हो चुका है, उसका जो प्रोडक्ट डिपॉजिट होता है न्यूरॉन में, तो वहाँ पे एक
डॉट डॉट टाइप का डिपोजिशन होता है, उसको बोलते हैं लेवी बॉडी। एंड इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। सो पैथोफिजियोलॉजी ऑफ योर पार्किंसन, देयर इज अ डिपोजिशन ऑफ लेवी बॉडीज इन द न्यूरॉन, वही क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर, इम्पोर्टेंट। नाउ दिस इज प्रोग्रेसिव, ये बढ़ते जाएगा, ठीक है, बढ़ते जाता है, प्रोग्रेसिव होता है, डीजनरेटिव होता है। अगेन जैसे जैसे ये डिसीज बढ़ेगा वैसे वैसे डिस्ट्रक्शन भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आया होगा कि व्हाई दिस इज हैपनिंग। सो व्हाई देयर इज अ पार्किंसनिज्म, व्हाट इज द रूट कॉज? देयर इज रूट कॉज इज नथिंग बट द deficiency of dopamine. So there is a generalized deficiency of dopamine. Dopamine deficiency, because of the dopamine deficiency, there is a cholinergic predominance or overactivity of cholinergic system and increased activity of GABAergic neuron, increased activity of GABA containing neuron. So dopamine का deficiency होता है, dopamine का लेवल कम हो गया तो cholinergic system जो है एसिटिलकोलिन वो आगे मुंह निकलेगा उसका, और GABAergic न्यूरॉन भी आगे बोलेंगे, आगे निकलेंगे, राइट। सो दिस इज द कंडीशन। नाउ पार्किंसनिज्म इज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ डोपामाइन। तो एक क्वेश्चन उसके ऊपर भी आ चुका है, डीजनरेशन ऑफ डोपामाइनर्जिक न्यूरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्किंसनिज्म। डीजनरेशन ऑफ एसिटिलकोलिन कंटेनिंग न्यूरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अल्जाइमर डिसीज, ठीक है। अल्जाइमर के ऊपर भी एक चैप्टर है, अपन देखें, चैप्टर तो नहीं लेकिन एक 10-15 मिनट का है, वो देखेंगे बाद में, ठीक है। सो just remember degeneration of dopamine containing neuron in the substantia nigra part, nigrostriatal tract, उसको होता है nigrostriatal tract or substantia nigra part of your brain that result in the Parkinsonism. Okay, there is a lack of or deficiency of dopamine, and due to deficiency of dopamine, there is a overactivity of cholinergic system and increased GABAergic neurons activity also. Okay, now rigidity, tremors, hypokinesia, they are nothing but the primary symptoms of your Parkinsonism. Parkinsonism के ये rigidity, muscle rigid होगा, tremors, involuntary contraction of muscles, and hypokinesia means decreased motor activity. So these three are the primary symptoms of your Parkinsonism, and some secondary symptoms are like this: defective posture, then gait will be defective, okay, mask-like faces, siluria, dementia means loss of memory. So these are nothing but the secondary symptoms of your Parkinsonism. Primary symptoms याद रखो, rigidity, tremors, hypokinesia, बाकी secondary symptoms. Now this was described first time by James Parkinson in 1817. Okay? एक बुक में 17 दिया है, यहाँ पे 70 लिखा है, यहाँ पे 70, so चेक करना पड़ेगा क्योंकि ये 70 नहीं है, 70 जो है वो सातशकर भंडारकर में दिया है, ये 17 जो है वो केडी त्रिपाठी में दिया है। So आप 17 याद रखो, it was described by James Parkinson in 1817. There is a degradation of neurons in the substantia nigra parts of your brain. It is also known as substantia nigra pars compact, SNPC, substantia nigra pars compact, which controls the muscle tone and coordinate the movement. तो ये जो पार्ट है उसमें जो डोपामाइन का रोल होता है, so that is role is nothing but the muscle tone, muscle का strength, muscle tone and coordination of movements, ठीक है। and because of the degradation of dopaminergic neuron in this part, substantia nigra, or you can say substantia nigra pars compact, SNPC, so there is a loss of muscle tone, there is a loss of muscular movement, there is a loss of coordination movement, etc. Okay? Now there is also one toxin known as a synthetic toxin, N-methyl-4-phenyl tetrahydropyrimidine, N-methyl-4-phenyl tetrahydropyridine, इसको बोलते हैं MPTP. In the short form, this is known as MPTP. Now this is a toxin or it is a impurity present in the certain drug of abuse. जैसे कोकेन होता है आपका, हीरोइन होता है आपका, जिसको आदत होती है कोकेन, हीरोइन, मॉर्फिन का. So in that drug of abuse, so this synthetic toxin is present as an impurity, N-methyl-4-phenyl tetrahydropyrimidine. So this also causes the degradation of dopamine containing neuron or dopaminergic neuron. Are you getting? समझ रहे आपको? Okay. Now you know that what is the cause of this dopamine? What is the cause of this Parkinsonism? There is a cause because of there is a deficiency of dopamine in this. Okay. So what should be your strategy? What should be your aims?
इसका ट्रीटमेंट करने के लिए आपके पास क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, आपका क्या होना चाहिए एम। सबसे पहला एम क्या है आपका कि डोपामाइन जो डिफिशिएंसी है उसको वहाँ पे फिलअप कर दो, वहाँ पे उसको फुलफिल करो। सो यू कैन रिप्लेस द डोपामाइन। ओके, सो डोपामाइन डिफिशिएंसी यू हैव टू रिप्लेस। सो विल सी व्हाट आर द डिफरेंट। ठीक है, सो यू कैन आइदर, ओके ठीक है मैं बोल देता हूँ आपको, यू कैन आइदर इंक्रीज द डोपामाइन लेवल इन द ब्रेन बाय गिविंग द डोपामाइन प्रीकर्सर। ओके, फर्स्ट क्या कर सकते हो आप, एक तो डोपामाइन का प्रीकर्सर दे दो, डोपामाइन का लेवल अगर बढ़ गया ब्रेन में तो उसका सिम्टम्स कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या कर सकते हो, सेकंड रीजन, तो अगर आप डोपामाइन का लेवल नहीं बढ़ सकते तो एटलीस्ट उसका मेटाबॉलिज्म जो हो रहा है वो कम करो। मेटाबॉलिज्म कौन करता है उसका, मेटाबॉलिज्म करने वाले एंजाइम्स कौन से, सो वहाँ पे दो एंजाइम होते हैं, माओ एंड कॉम्ट। सो पर्टिकुलरली माओ बी विल मेटाबोलाइज द डोपामाइन, माओ ए जो होता है वो मेटाबोलाइज करता है इसको नॉर एड्रेनालिन एंड योर 5-HT हिस्टामाइन। ठीक है, वो तीनों को वो मेटाबोलाइज करता है। माओ ए, माओ बी दो बाई होता है, माओ वाला, माओ का दो बाई होता है, माओ ए एंड माओ बी। माओ मतलब क्या है, MAO, माओ मतलब मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। ठीक है, तो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज मतलब क्या है, मोनोअमाइन को ऑक्सीडाइज करने वाला एंजाइम, सिंपल। सो माओ ए विल ऑक्सीडाइज द हिस्टामाइन, will oxidize the noradrenaline, will oxidize the serotonin. Okay, but MAO B will particularly oxidize the dopamine, and that's why MAO B inhibitors they are used in the Parkinsonism. MAO B को इनिबिट करेंगे तो डोपामाइन का लेवल बढ़ जाएगा क्योंकि मेटाबोलाइज नहीं हो सकता डोपामाइन, उसको इनिबिट कर दिया। सो क्वेश्चन एक बार आ चुका है आपको, देयर वाज वंस अ क्वेश्चन इन द एग्जाम। सो वन ऑफ द फॉलोइंग inhibitors they are used as anti-Parkinson drug. So MAO B inhibitors are used as anti-Parkinson drug. MAO A inhibitors they are used as mood elevators. They are used as antidepressants. तो MAO A inhibitor जो होता है वो antidepressant होता है, MAO B inhibitor जो होता है वो anti-Parkinson होता है। ठीक है, clear? Again, so first you can increase you can give the precursor of dopamine. Second, you can prevent its metabolism. ठीक है, you can prevent its metabolism by inhibiting the MAO B और by inhibiting the COMT. COMT मतलब क्या होता है, कार्बोक्सी और कैटेकोलामाइन ऑर्थोमिथाइल ट्रांसफरेज, COMT कैपिटल। COMT उसको बोलते हैं कैटेकोलामाइन ऑर्थोमिथाइल ट्रांसफरेज। तो वो भी क्या करता है, मेटाबोलाइज करता है कैटेकोलामाइन्स को सबको। सो इनिबिट दैट। ओके, सो देखो डोपामाइन प्रीकर्सर एक टारगेट हो गया आपका, दूसरा टारगेट हो गया कि आपका माओ उसको मेटाबोलाइज करने वाला एंजाइम उसको ब्लॉक करो, तीसरा टारगेट हो गया आपका कॉम्ट। ठीक है, कॉम्ट को ब्लॉक करो। फोर्थ टारगेट क्या होना चाहिए, अगर आप ये इन तीनों में से कुछ नहीं कर सकते तो नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, आपको कैसे डोपामाइन का लेवल बढ़ा सकते हो, तो यू कैन स्टिमुलेट द डोपामाइन रिसेप्टर। सो दैट्स व्हाई डोपामाइन रिसेप्टर एगोनिस्ट। ठीक है, एक टारगेट होगा। देखो यहाँ पे मैंने 4 टारगेट बोले आपको, और वो 4 टारगेट क्या है, दे आर नथिंग बट द 4 क्लासेस ऑफ ड्रग यूज्ड इन द पार्किंसन डिसीज। ये 4 क्लासेस का ड्रग यूज किया जाता है उसमें। ठीक है, सो विल सी एम्स ऑफ थेरेपी इन द पार्किंसन डिसीज, क्या क्या हो सकता है आपका एम। ठीक है, सो एम इज नथिंग बट द टू रिलीव द रिजिडिटी, ट्रिमर्स एकाइनेशिया, सो यूजिंग द लिवोडोपा एंड फिजियोथेरेपी। ठीक है, देन सेकंड क्या होगा, करेक्शन ऑफ मूड चेंजेस, जो मूड चेंज हो रहा है, जो डिप्रेशन आ रहा है उसको, है ना, तो you can correct that mood changes or depression by using antidepressant drug, but they are under clinical monitoring. They are only used under clinical monitoring because antidepressant they can cause a severe adverse effect. जिसको भी डिप्रेशन हो गया है उसको एंटीडिप्रेसेंट ड्रग देते हैं, और एंटीडिप्रेसेंट ड्रग ले लिया उसने तो उसको एक सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप होता है। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट ऑफ योर एंटीडिप्रेसेंट्स, जिसको भी एंटीडिप्रेसेंट दिए वो सुसाइड करने का ट्राई करेगा। जैसे आपका एग्जांपल था सुशांत सिंह राजपूत, जिसके सामने भी उंगली दिखाता वो, तो उसको नहीं बोलती, कोई भी उसके साथ में रहने को तैयार होता, उसके साथ में टाइम बिताने को तैयार होता, क्योंकि बड़ा एक्टर था और पैसों की कोई कमी नहीं थी। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स यूज़ किए, डिप्रेशन में गया, ट्रीटमेंट लिया, बाद में क्या होगा, सुसाइड किया। क्यों? एंटी डिप्रेसेंट ड्रग का एडवर्स इफेक्ट वही होता है कि पेशेंट विल डेवलप अ सुसाइडल टेंडेंसी व्हेन विल सी एंटी डिप्रेसेंट एट द टाइम आई विल एक्सप्लेन यू। ठीक है, तो अभी नहीं। सो करेक्शन ऑफ मूड चेंजेस, एंटी डिप्रेसेंट दे आर अंडर क्लिनिकल मॉनिटरिंग। ओके।
करेक्शन ऑफ अदर सिम्टम्स जैसे बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव एसिटिलकोलिन सलाइवेशन होता है, एक्सेसिव सीबम सिक्रेट होता है, स्वेटिंग होता है, सो यू कैन करेक्ट दैट दो सिम्टम्स. ओके, देन ट्रीटमेंट ऑफ कॉज, क्यों हो रहा है डोपामाइन, उसका कॉज का ट्रीट करो. ओके, दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ कॉज इज सर्जिकल मैनेजमेंट एंड अगेन फिजियोथेरेपी. नाउ सो दीज आर द डिफरेंट एम्स फॉर द ट्रीटमेंट. नाउ टारगेट्स फॉर द एंटी पार्किंसन ड्रग. एंटी पार्किंसन ड्रग के लिए क्या क्या टारगेट रहेंगे? तो सबसे पहला क्या है कि प्रीकर्सर दे दो. फर्स्ट इज अ प्रीकर्सर. यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहाँ पे चीज़ लिखा नहीं हूँ. प्रीकर्सर दे दो तो वो क्या करेगा, डोपामाइन रिलीज करेगा, डोपामाइन का डिफिशियंसी फुलफिल करेगा. ठीक है. सेकंड क्या है कि अगर आप प्रीकर्सर नहीं दे सकते, इफ यू कैन नॉट गिव द प्रीकर्सर डोपामाइन, देन यू हैव टू प्रिवेंट द मेटाबॉलिज्म ऑफ डोपामाइन. सो हाउ यू कैन प्रिवेंट द मेटाबॉलिज्म ऑफ डोपामाइन? तो उसके लिए आपको मालूम होना चाहिए हाउ देयर इज अ सिंथेसिस, स्टोरेज, रिलीज एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कैटेकोलामाइन्स. तो वो अपन प्रॉपरली देखेंगे जब एड्रेनर्जिक ड्रग स्टार्ट करेंगे उस टाइम पे. लेकिन अभी बोल देता हूँ आपको, सेकंड टारगेट इज अ मेटाबॉलिज्म. यू कैन प्रिवेंट द मेटाबॉलिज्म. सो who used to metabolize this dopamine? There are two enzymes which metabolize the dopamine. ठीक है. कौन से वो है? एक होता है आपका MAO, MAO. ठीक है, यहाँ पे. दूसरा होता है COMT. ठीक है, तो उनको इनहिबिट करो. ठीक है, MAO इनहिबिटर एंड COMT इनहिबिटर. सो MAO एंड सेकंड होता है COMT इनहिबिटर. सो MAO inhibitors, COMT inhibitors, they are used in the Parkinson. Again, so if you cannot, or if you are not able to inhibit that COMT or MAO, what is next target? कैसे डोपामाइन का लेवल बढ़ाना है आपको? थर्ड टारगेट इज नथिंग बट द यूजिंग डोपामाइन रिसेप्टर एंड एगोनिस्ट. तो डोपामाइन रिसेप्टर एगोनिस्ट यूज करो, ब्रोमोक्रिप्टिन वगैरह. ठीक है. ओके, देन ये तो हो गए आपके 4 क्लासेस ऑफ ड्रग. ठीक है, 4 क्लासेस तो यही पे हो गए. फिफ्थ क्लास क्या होगा? सो ड्यू टू डिफिशिएंसी देयर इज एक्सेसिव एसिटिलकोलिन एक्टिविटी. तो एसिटिलकोलिन को ब्लॉक करो. सो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स दे आर आल्सो यूज्ड. सो नेक्स्ट क्लास हो गया आपका. ठीक है, मतलब आपको क्लासिफिकेशन याद करना ही नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, समझ के लेना है कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और क्या कर सकते हो. ये अगर समझ में आया ना तो पूरा फार्माकोलॉजी समझ में आएगा आपको. ठीक है. सो आज थोड़ा हिंदी में ही ले रहा हूँ मैं. ठीक है. सो इफ यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स, इफ यू अंडरस्टैंड द फिजियोलॉजी प्रॉपरली, you will able to find out the targets, and once you find the target, each target will comprise one class. okay, जैसे मैंने बोला है कि डोपामाइन का सिंथेसिस मालूम होना चाहिए आपको, कैसे हो रहा है, रिलीज कैसे हो रहा है, वहाँ पे मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है, और एक्शन बाद में एक्टिंग. ठीक है. सो यू कैन इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ डोपामाइन बाय गिविंग द प्रिकर्सर, और यू कैन रिप्लेस द डोपामाइन बाय यूजिंग प्रिकर्सर. सेकंड, you can prevent its metabolism by inhibiting the MAO-B and by inhibiting the COMT. Third, you can stimulate the dopamine receptor by using dopamine receptor agonist. Fourth, this is the dopamine targets for dopaminergic drug. मतलब dopamine के लिए ये target रहेगा. Second, so if there is excessive activity of acetylcholine, so block that. So anticholinergic drugs, okay, so they are used, or antimuscarinic drugs, they are also used. So यहाँ पे 5-6 क्लासेस आपका हो गए हैं. ठीक है, मैंने एक्सप्लेन किया है, बाकी सब आपके एग्जाम्पल ही देखने हैं. ठीक है. सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोपामाइन रिसेप्टर्स ऑफ डोपामाइन? सो डोपामाइन रिसेप्टर दे आर नथिंग बट D1, D2, D3, D4, D5, कैपिटल D1, D2. ठीक है. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डोपामाइन रिसेप्टर. ठीक है. सो इनिशियली देर वॉज ओनली 2 टाइप्स डिस्क्राइब्ड. पहले 2 ही टाइप का पता लगा था कि डोपामाइन 1 रिसेप्टर होता है, डोपामाइन 2 रिसेप्टर होता है. लेकिन बाद में पता चला कि वहाँ पे 5 रिसेप्टर, मतलब 5 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स आते हैं. डोपामाइन D1, D2, D3, D4, D5. सो आउट ऑफ दैट D1 and D5 they are similar in nature, and out of that D1, D5 are similar in nature, they are known as inhibitory and other are the excitatory. D2, D3, D4 they are in similar nature. तो D1, D5 similar nature का होता है. D4, D5, okay, D2, D3, D4 वो similar nature का होता है. All the dopamine receptors they are nothing but they belongs to G protein coupled receptor. यहाँ पे GPCR का nature होता है उनका. You can see here D1 to D5, okay, D1 to D5 इतने टाइप के रिसेप्टर होते हैं, 5 टाइप की. D1, D2, D3, D4, D5. So D1
okay, D1 like receptor. So मैंने जैसे बोला है, so initially okay there was only two receptor of dopamine which was the explained, that is D1 and D2, but later it was found that there are five. So D1 and okay D1 like मतलब D1 की जैसे कौन से D1 and D5 they are known as a D1 and D5 they are known as a D1 like dopamine receptor. So they are the excitatory, ये excitatory होता है and they act by hydrolyzing the cyclic AMP okay inositol diphosphate. ये IP2 और cyclic GMP को hydrolyze करेंगे and there is a conversion of cyclic AMP to cyclic AMP IP2 to IP3 that is inositol triphosphate, and they will mobilize the calcium ions and activate the protein kinase C through inositol triphosphate and diacylglycerol. और बाद में आपको मालूम है so there is increase or decrease in the activity of. Then another type of receptor is known as a D2 like receptor. Okay, so D2, D3, D4 they are of one category known as a D2 like. D1, D5 they are known as a D1 like. Okay? So D1 and D5 they are excitatory neurotransmitter और excitatory receptors, ये excitatory होता है, and D2, D3, D4 inhibitory होता है. So acts by inhibiting the adenyl cyclase and or by opening the potassium channel or by depressing the voltage dependent calcium channel. ठीक है, तो D1 D5 जो होता है वो स्टिमुलेटरी इन नेचर होता है. ठीक है, D2 D3 D4 जो होता है डोपामाइन का रिसेप्टर्स वो क्या होता है इनहिबिटरी इन नेचर होता है. तो ये फंक्शन कम करेंगे तीनों, ये फंक्शन बढ़ाएंगे. आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि जो डोपामाइन रिसेप्टर एगोनिस्ट होंगे वो किसको एगोनिस्ट करेंगे. सो दे आर मोस्टली D1 D5 रिसेप्टर एगोनिस्ट. सिंपल थिंग यहाँ पे समझना आना चाहिए क्योंकि ये तो इनहिबिटरी है, आपको फंक्शन इनका नहीं इतना है. ठीक है, D1 D2 they are present in the stadium. Okay, stadium and related with the effect of levodopa. तो stadium मतलब निग्रोस्टैटियल ट्रैक्ट में D1 D2 रिसेप्टर होता है. So they are present in the nigrostriatal tract or substantia nigra part, and their effect is levodopa. Effect of levodopa is because of the stimulation of D1 and D2. So anti-Parkinson effect of levodopa is due to D1 and D2. levodopa क्या होता है अपन देखेंगे बाद में. D1 stimulation and D2 inhibition. D1 stimulation and D2 inhibition. कि D2 क्या है inhibitory होता है, D1 क्या है stimulatory. So levodopa stimulate the D1 that is stimulatory dopamine receptor and inhibit the D2 that is inhibitory dopamine receptor. तो levodopa इसको D1 को stimulate करता है, D2 को inhibit करता है, and that is responsible for its anti-Parkinson effect in the substantia nigra part. Okay, so inhibition that result in the okay, so because of the use of levodopa जो movement है वो there is a smoothing of movement, smooth movement होंगे and reduced muscular tone. कोई muscular tone वहाँ पे reduce होगा. rigidity मतलब क्या, rigid कब होगा मसल आपका. so if there is a extra muscle tone in the muscle, आपके मसल में ज़्यादा टोन है ना, तो वो rigid होगा. आपने बहुत ज़्यादा कुछ हेवी उठा लिया, दिन भर उठा लिया, तो क्या होता है आपका मसल जो है ना स्टिफ हो जाता है, एकदम रिजिड हो जाता है. ठीक है, तो उसका तब आपको स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट लेना पड़ता है. जैसे आप सो गए एक पर्टिकुलर तकिया लेके कैसे आड़े टेढ़े सो गए, क्या होता है आपका मॉर्निंग में आपका जो गर्दन है पूरा जाम हो जाता है. क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द स्टिफनेस ऑफ मसल, रिजिड होता है वो. तब आपको क्या होता है मसल रिलैक्सेंट लेना पड़ता है. सो लाइक वाइज दैट. सो levodopa will reduce the muscle tone and it will cause increase in the smoothness of movement. Right now, classification of drug used in the Parkinsonism. Anti-Parkinson drug का classification. Okay, so those drug which increases the dopaminergic activity. पहला class कौन सा है? Those drug which will increase the dopaminergic activity. So that means they will increase the dopamine level. Okay, or by any means. So how you can increase the dopamine level? So either giving the precursor. So precursor for dopamine कौन है? levodopa. levodopa is a precursor of dopamine. ठीक है. सेकंड, dopamine metabolism inhibitor. dopamine का metabolism inhibit करो, ऑटोमेटिकली dopamine का लेवल क्या होगा? बढ़ जाएगा. पहला होता है dopamine का precursor levodopa. सेकंड dopamine metabolism inhibitor. तो उसमें मेटाबॉलिज्म करने वाले एंजाइम कितने हैं? 2. So there are 2 enzymes which metabolize the dopamine. So MAO-B and COMT. ठीक है, MAO-B and COMT. MAO मतलब मोनो अमीनो ऑक्सीडेज, B. MAO के 2 टाइप होते हैं. MAO-A एक होता है. Okay, there are 2 types of MAO, MAO-A and MAO-B. So MAO-A will metabolize preferentially your
noradrenaline, adrenaline, histamine, and serotonin. MAO-B metabolizes the mostly your dopamine. So MAO-B inhibitor example is a सिलेजिलिन एंड रेसाजिलिन. दो होता है सिलेजिलिन एंड रेसाजिलिन. ठीक है, आठ लिखता हूँ. सिलेजिलिन एंड रेसाजिलिन, दीज आर द टू ड्रग विच आर नोन एज अ MAO-B इनिबिटर. क्वेश्चन 2 बार आ चुका है. विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अ MAO-B इनिबिटर. ठीक है, आपको सब सिमिलर नाम देंगे. MAO-A इनिबिटर अलग है, MAO-B इनिबिटर अलग है. सो MAO-B इनिबिटर आर यूज्ड इन द Parkinsonism. MAO-A inhibitor are used in the used as an antidepressant. याद रखना. सेकंड आता है आपका COMT इनिबिटर, कैटेकोलामाइन ऑर्थोमिथाइल ट्रांसफरेज इनिबिटर. ठीक है, COMT भी एक क्या है? इट इज ऑल्सो वन ऑफ द एंजाइम व्हिच मेटाबोलाइज द मोनोअमाइन्स एंड डोपामाइन इज नथिंग बट वन ऑफ द मोनोअमाइन. ठीक है, सो इनिबिशन ऑफ COMT, so that result in the increase in the dopamine level in the brain. So example is a tolcapone and entacapone. टोल्काफोन एंड एंटाकाफोन. तो आपको यहीं पे बोल देता हूँ, बाद में याद रहेगा. सो दिस टोल्काफोन हैज वन सीरियस साइड इफेक्ट नोन एज हिपेटोटॉक्सिटी. हिपेटोटॉक्सिटी thrombomyositis and it is banned in the few European countries. Tolcapone it is banned in the European countries because of the hepatotoxicity, but entacapone को नहीं है ऐसा adverse effect. Okay? And entacapone is 5 times more potent than tolcapone. Then peripheral decarboxylase inhibitor. अभी क्या है, ये मेटाबोलाइज करने इनिबिट करने वाले ड्रग है. थर्ड क्लास इज नोन एज अ पेरिफेरल डोपा डीकार्बोक्सिलेज इनिबिटर. ठीक है, ये सब जो चल रहा है कार्यक्रम अभी तक वो सेंट्रल में चल रहा है, ब्रेन में चल रहा है. ठीक है, सो डोपामाइन प्रिकर्सर ब्रेन में आएगा. ठीक है, डोपामाइन मेटाबॉलिज्म MAO-B COMT ब्रेन में, लेकिन COMT पेरिफेरल पे होता है. पेरिफेरल डोपा डीकार्बोक्सिलेज इनिबिटर. पेरिफेरल मीन्स व्हाट? पेरिफेरल मीन्स अदर देन ब्रेन. जैसे ब्लड हो गया, लिवर हो गया, किडनी हो गया, तो उसको बोलेंगे पेरिफेरल. राइट, सो पेरिफेरल डोपा डीकार्बोक्सिलेज. सो देयर इज वन एंजाइम नोन एज डोपा डीकार्बोक्सिलेज. सो व्हिच causes the decarboxylation of, okay, which causes the decarboxylation of this dopamine and inactivate them. So peripheral dopa decarboxylase is known as a carbidopa and benserazide. Benserazide क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है. बेंसेराजाइड इज अ एंटी पार्किंसन ड्रग और ड्रग यूज्ड इन द पार्किंसनिज्म, एक्ट्स बाय फॉलोइंग मैकेनिज्म. सो इट इज अ पेरिफेरल डोपा डीकार्बोक्सिलेज इनिबिटर. देन कार्बिडोपा एंड लीवोडोपा दे आर कंबाइंड टुगेदर. क्यों करते हैं अपन देखेंगे रीजन बाद में. बिकॉज दिस कार्बिडोपा इनिबिट द पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म ऑफ योर लीवोडोपा. ठीक है, ये हो गया कार्बिडोपा एंड बेंसेराइड. फर्स्ट क्लास डोपामाइन प्रिकर्सर लीवोडोपा, मेटाबॉलिज्म इनिबिटर्स MAO-B इनिबिटर्स सिलेजिलिन, रेसाजिलिन, COMT इनिबिटर्स टोल्काफोन एंड एंटाकाफोन. ओके, सेकंड थर्ड क्लास होता है आपका पेरिफेरल डोपा कार्बोक्सिलेज इनिबिटर. ओके, इन दैट यू हैव कार्बिडोपा एंड बेंसेराजाइड. ओके, देन नाउ डोपामाइन रिलीजर. ओके, डोपामाइन रिलीज में आएगा अमेंटाडिन, उसके बाद में उसका भाई आता है रिमांटाडिन. अमेंटाडिन एंड रिमांटाडिन. Okay, both, okay, these are the dopamine releasing agent. There are also NMDA receptor antagonist. ठीक है, बाद में आएगा आपको. Amantadine जो है, it was the first developed as an antiviral drug. एंटीवायरल ड्रग एज अ डेवलप किया गया था, and later on it has been seen that this amantadine will increase the dopamine level. That's why it can be used in the Parkinsonism. Nowadays it is used in the Parkinsonism. So it releases the dopamine. ओके, सो डोपामाइन रिलीजर. देन नेक्स्ट क्लास क्या होगा, जैसे मैंने टारगेट बोले थे, अगर आप प्रिकर्सर नहीं दे सकते तो मेटाबॉलिज्म इनिबिट करो. मेटाबॉलिज्म इनिबिट नहीं कर सकते तो डोपामाइन रिलीज करो. कैसे करेंगे? डोपामाइन रिलीज एनहांसर अमेंटाडिन. अगर रिलीज नहीं कर सकते तो क्या करो, उसके रिसेप्टर के एगोनिस्ट यूज करो, उसके रिसेप्टर को स्टिमुलेट करो. सो डोपामाइन रिसेप्टर एगोनिस्ट नेक्स्ट क्लास. ब्रोमोक्रिप्टिन, लाइसोराइड एंड रोपिनिरोल. इसमें 2 आता है, रोपिनिरोल और एक रोल आता है. ब्रोमोक्रिप्टिन, ओके, लाइसोराइड एंड रोपिनिरोल, ये सब क्या है? डोपामाइन रिसेप्टर एगोनिस्ट, D2 रिसेप्टर एगोनिस्ट. देन कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, कोलिनर्जिक एक्टिविटी सप्रेसिंग एजेंट, एंटीकोलिनर्जिक. तो इसमें क्या है? एट्रोपिन, बेंजेक्सोल, प्रोसाइक्लिडिन, बेंजाइलोएट्रोपिन. इट आल्सो इनहिबिट द डोपामाइन रीअपटेक. बेंजाइलोएट्रोपिन आल्सो इनहिबिट द डोपामाइन रीअपटेक. मतलब ये तो
एंटी कोलिनर्जिक तो है ही, उसके एडिशन में ये क्या करता है, रीअपटेक भी इनिबिट करता है, डबल बेनिफिट करेगा. देन देर आर सर्टन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स, फॉर एग्जांपल ऑरफेनेड्रिन एंड प्रोमेथाजिन. तो क्लासिफिकेशन समझ में आया आपको? आर यू गेटिंग और नॉट? समझ रहा है आपको ये? ओके, क्लासिफिकेशन समझ में आ रहा है. विल सी द नेक्स्ट पार्ट. एंटी पार्किंसन ड्रग, अगेन यू कैन सी द क्लासिफिकेशन. एंटी पार्किंसन ड्रग, सो फर्स्ट ड्रग अफेक्टिंग द ब्रेन डोपामिनर्जिक सिस्टम. ब्रेन में डोपामिनर्जिक सिस्टम को कौन अफेक्ट करता है? फर्स्ट इज डोपामाइन प्रिकर्सर, उसका है लीवोडोपा. ओके, सो रिमेंबर लीवोडोपा, इट इज अ प्रो ड्रग ऑफ डोपामाइन. ठीक है, इट इज अ प्रो ड्रग ऑफ डोपामाइन. सो इन द आफ्टर द मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी, लीवोडोपा विल बी कन्वर्टेड इनटू डोपामाइन. सो दैट्स व्हाई इट इज अ प्रो ड्रग ऑफ डोपामाइन. ठीक है, बाद में आप बोलना मत कि सर ने बोला ही नहीं, हमको मालूम ही नहीं, बोल दिया. ठीक है. सो सेकंड क्लास पेरिफेरल डोपा डीकार्बोक्सिलेज इनिबिटर. सो कार्बिडोपा एंड बेंजीसराइड. ओके, बेंजीसराइड. सो कार्बिडोपा एंड बेंजीसराइड, दे आर नोन एज पेरिफेरल डोपा डीकार्बोक्सिलेज इनिबिटर. देन थर्ड क्लास आता है उसका अपने डोपामाइन रिसेप्टर एगोनिस्ट. सो इन दैट ब्रोमोक्रिप्टिन इज देयर, प्रोपिनोरोल इज देयर एंड प्रामीपेक्सोल इज देयर. सो ओल याद रखो, ये दोनों भी ओल है. दे आर द डोपामाइन रिसेप्टर एगोनिस्ट. ओल, प्रोपिनोरोल, प्रामीपेक्सोल, दोनों भी लास्ट में ओल आएगा. एंड ब्रोमोक्रिप्टिन इज ऑल्सो डोपामाइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट. और एक ड्रग है जो मेरे क्लास में था, क्लासिफिकेशन में था, तो याद रखना है. नाउ माओ बी इनिबिटर. सो माओ बी इनिबिटर. ओके, सो जिलिन. ओके, फर्स्ट है सेलेजिलिन, दूसरा है रेसाजिलिन. सो जिलिन्स आर माओ बी इनिबिटर, याद रखना है आपको. सेलेजिलिन, रेसाजिलिन. ओके, थर्ड क्लास. ओके, नेक्स्ट क्लास, फिफ्थ क्लास आएगा कॉम्ट इनिबिटर. कॉम्ट क्या है? अगेन कैटेकोलामाइन ऑर्थोमेथाइल ट्रांसफरेज. ये भी एंजाइम मेटाबोलाइज करता है आपके डोपामाइन को. बेसिकली ये ज़्यादा करता है माओ भी, बट ये भी करता है पेरिफेरली. सो एंटाकैफोन एंड टोल्कैफोन. ओके, टोल्कैफोन, एंटाकैफोन, दीज आर द कॉम्ट इनिबिटर. ओके, लास्ट में आता है ग्लूटामेट एनएमडीए रिसेप्टर एंड एगोनिस्ट डोपामाइन रिलीजर एजेंट, डोपामाइन रिलीज करने वाला. अमेंटेडिन, रिमांटेडिन. रिमांटेडिन. ड्रग्स अफेक्टिंग द ब्रेन कोलिनर्जिक सिस्टम. हर एक बुक का अलग अलग अपना क्लासिफिकेशन का स्टाइल होता है. सेकंड आएगा आपका ड्रग्स अफेक्टिंग द ब्रेन कोलिनर्जिक सिस्टम. इसमें सेंट्रल एंटी कोलिनर्जिक. सो एग्जाम्पल है ट्राइहेक्सीपेनिडिल, प्रोसाइक्लिडिन, बायपेरिडेन. याद रखना है. बीपीटी है ना, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बीपीटी. बी मतलब बैचलर, पी मतलब फिजियो एंड टी मतलब थेरेपी. सो बीपीटी मतलब ज़्यादा मैं तो ट्रिक्स वगैरह मुझे भी आ सकते हैं, इतना भी ट्रिक्स बना सकता हूँ मैं, लेकिन ट्रिक्स के ऊपर मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता. बिकॉज इसके पीछे रीज़न ये है कि आपको पहले तो ट्रिक याद करना पड़ता है, उसके बाद में ड्रग का नाम याद करना पड़ता है. तो ट्रिक्स के रिगार्डिंग में सोचना है. ठीक है, तो बना सकता हूँ ऐसा. अभी ये मैंने अभी बनाया बीपीटी मतलब क्या, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी. ऐसा बना सकते हैं बहुत सारे ट्रिक्स. ठीक है. देन आता है नेक्स्ट एंटी हिस्टामिनिक. सो ओके, ऑरफेनेड्रिन एंड प्रोमेथाजिन. सो दिस इज अगेन द क्लासिफिकेशन ऑफ योर ड्रग यूज्ड इन द पार्किंसोनिज्म. तो आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए कौन सा ड्रग क्या करेगा. एक बार बेसिक क्लियर हो गया, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व करना है. लेकिन आप क्या करते हो सब क्वेश्चन के पीछे मत भागो. आप बेसिक्स के पीछे भागो, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा. नेक्स्ट यू कैन सी ओवर हियर अगेन हाउ दिस ड्रग विल एक्ट, हाउ पर्टिकुलर ड्रग विल एक्ट एज एन और हाउ पर्टिकुलर ड्रग विल बी यूजफुल इन द पार्किंसोनिज्म. पहले तो क्या है, पार्किंसोनिज्म में डोपामाइन का डिफिशिएंसी ऑफ डोपामाइन है ना. देयर इज अ जनरलाइज्ड डिफिशिएंसी ऑफ डोपामाइन, ब्रेन में डोपामाइन का डिफिशिएंसी. Now, so this part is known as a brain part in the brain. This one is known as in the periphery. मतलब blood. Periphery means blood, then your kidney, then liver. Okay. This is the metabolism of levodopa actually. With the metabolism of levodopa, they only given the different targets for drugs. So levodopa. पहले तो periphery में क्या होता है? Levodopa in the periphery is metabolized by dopa decarboxylase. It is known as a peripheral dopa decarboxylase. And levodopa is converted into dopamine. Dopamine. Dopa decarboxylase क्या करेगा? मेटाबोलाइज करेगा डोपामाइन का
levodopa का. So in the peripheral tissues, in the periphery, this levodopa is metabolized to a dopamine by the enzyme known as a dopa decarboxylase. Now we have dopamine. Okay, dopamine as such it cannot cross the blood brain barrier. ठीक है, पहले बोलना चाहिए था मैंने, ये अभी बोल रहा हूँ. डोपामाइन जो होता है, सो इफ़ यू गिव ए डोपामाइन, आप बोलेंगे सर डोपामाइन का डिफिशियंसी है तो डोपामाइन का इंजेक्शन दे दो, फिर हो जाएगा. सलाम है आपको, डोपामाइन विल नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर बिकॉज ये डिफिशियंसी ब्रेन में फुलफिल होना चाहिए, बाहर नहीं. सो डोपामाइन फर्स्ट इट विल नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, तो उसका वो ये यूज़ नहीं कर सकते. सेकेंडली, डोपामाइन इज इनएक्टिवेटेड बाय योर GIT enzymes, and if it is absorbed in the blood, so it is metabolized by again another enzymes. Okay, so dopamine. Okay, remember now levodopa when it is given in the form of your tablet or what happens 9. Okay, so it is a 99% absorbed, but again absorption is also good, but definitely metabolism is also good. Okay, so in the periphery levodopa whatever is absorbed, okay, so 99% of levodopa is metabolized by this peripheral dopa decarboxylase. तो रहेगा कितना 1% आएगा वहाँ पे ब्रेन में. ओके, सो 1% मतलब that is not sufficient, और जो 1% बचा है वो भी थोड़ा बहुत आपके बाकी इस पे एक्ट होगा, हार्ट के ऊपर किडनी के ऊपर, बहुत ही कम मात्रा में डोपा वहाँ पे मिल जाएगा. So levodopa, it is though it is has a good absorption, it is bioavailability is good, but it is metabolized in the peripheral tissue, in the blood, by the peripheral dopa decarboxylase enzyme. That dopa decarboxylase convert that levodopa into dopamine, and now this increased dopamine in the peripheral tissue causes the postural hypotension, arrhythmia and vomiting. अभी ये postural hypotension ये चीज़ क्या है? ठीक है, तो चीज़ बड़ी है मस्त, ये भी चीज़ बड़ी मस्त नहीं है, लेकिन ये चीज़ बहुत ख़राब है. पोस्चरल हाइपोटेंशन. सो पोस्चर कैसा है आपका? जैसे मैं अभी यहाँ पे आपके सामने बैठा हुआ हाथ बांध के, तो मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है. अगर मैं लेट जाऊँगा तो मेरा ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा. सो दैट इज नोन एज अ पोस्चरल हाइपोटेंशन. सो डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर ड्यू टू चेंज इन द पोस्चर. आपका पोस्चर चेंज हो गया अपना, आप खड़े हो ब्लड प्रेशर अलग है, बैठे हो ब्लड प्रेशर अलग है, कम हो गए, लेट गए और भी कम हो गए, सो गए तो मर जाओगे. ठीक है, ऐसा नहीं होता लेकिन. सो डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर ड्यू टू पोस्चर नोन एज अ पोस्चरल हाइपोटेंशन. देन अरिथमिया, यू नो दैट कार्डियक अरिथमिया. सो डिक्रीज डिस्टर्बेंस इन द रिदम, नॉर्मल रिदम जो भी है उसका डिस्टर्बेंस हो गया तो अरिथमिया, वोमिटिंग. सो डोपामाइन इफ इट इज गिवन इट कैन कॉज पोस्चरल हाइपोटेंशन, अरिथमिया, वोमिटिंग. That's why dopamine is not given. And again, dopamine cannot cross the blood-brain barrier, and it is not able to fulfill the deficiency of dopamine in the brain, because deficiency कहाँ पे हो रहा है? ब्रेन में हो रहा है, तो वहाँ पे चाहिए ना वो ड्रग. तो ये पेरीफेरी में ये सब कुछ काम निपटा देगा. ओके, so that's why one drug is there. Again, levodopa is also metabolized in the periphery by COMT. levodopa एक COMT भी मेटाबोलाइज करेगा. कॉम्ट क्या है? कैटेकोलामाइन ऑर्थोमिथाइल ट्रांसफरेज. सो लेवोडोपा इज कन्वर्टेड इनटू 3-dihydroxy मेटाबोलाइट. ओके, ऑर्थोमिथाइल डोपामाइन. सो 3-diorthomethyl dopamine ऐसा कुछ है वो, दैट इज कन्वर्टेड इनटू दिस मेटाबोलाइट बाय कॉम्ट. ओके, नाउ हाउ यू कैन प्रिवेंट दिस? यू कैन प्रिवेंट बिकॉज अल्टीमेट एम क्या है कि लेवोडोपा का कॉन्सेंट्रेशन ब्रेन में ज़्यादा जाना चाहिए. तो ये क्या हो रहा है? ये ब्लड में ही मेटाबोलाइज हो रहा है, ये सब ब्लड में. तो ये ससुरे को यहाँ पे इनहिबिट करना है आपको. सो यू कैन इनहिबिट दिस कॉम्ट बाय एंटाकैफोन एंड टोलकैफोन. ठीक है, कॉम्ट को बंद कर दिया, उसका काम तमाम कर दिया. उसके बाद में कार्बिडोपा यूज़ करो, उसको डोपा डेकार्बोक्सिलेज को इनहिबिट करो, उसका भी काम तमाम कर दो. तो क्या होगा? दिस डोपामाइन इज नॉट कन्वर्टेड इनटू दिस लेवोडोपा इज नॉट कन्वर्टेड इनटू डोपामाइन. ओके, or this COMT, okay, L-dopa is not converted into this metabolite also by COMT, so that this levodopa is available in the more quantity in the brain. एक बार ब्रेन में गया, okay, now in that in the brain levodopa is converted to dopamine, and there is a
इट विल एक्ट ऑन इट्स रिसेप्टर, रिसेप्टर के ऊपर एक्ट होगा एंड पार्किंसन का सिम्टम जो है उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा आपका, ठीक है। सो बिकॉज वहाँ पे वो डोपामाइन आ गए, ठीक है। बट इफ देर इज अ डिक्रीज द अमाउंट ऑफ डोपामाइन इन द, ओके, एक स्ट्रेटजी ये होता है आपका, लियोडोपा यूज़ करो, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट स्ट्रेटजी, ठीक है, लियोडोपा यूज़ करो, ठीक है। उसको वहाँ तक पहुँचने में भी इतना सारा मशक्कत करना पड़ता है आपको, ये सब। नाउ सो डोपामाइन will act on its receptor in the brain. Dopamine will act on a receptor in the brain. So you can also stimulate that receptor by using dopamine receptor agonist. So pramipexole, ropinirole, bromocriptine, paragolide. These are the drugs. So known as dopamine receptor agonist. Okay. Okay. Now in the brain also this dopamine is metabolized. In the brain also this dopamine is metabolized by two enzymes, COMT and MAO. MAO-B will metabolize this dopamine into this diorthohydroxy phenylacetic acid and this OMD metabolite. So again MAO-B inhibitor, resagilin, selagilin, they are useful because they will prevent the metabolism of dopamine. Right? So increased level of dopamine will be available. COMT inhibitors also will increase the dopamine level because of the inhibition, like tolocapone. तो दिस इज नथिंग बट द टारगेट्स। ये टारगेट्स होते हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है समझ में आना चाहिए, कि आपको यहीं पे क्लियर होना चाहिए सब कुछ। बाकी बचता क्या है, एडवर्स इफेक्ट, इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ईजी होता है। नाउ फर्स्ट ड्रग यूज्ड इन द पार्किंसनिज्म इज levodopa. So it is a prodrug. It gets converted into dopamine in the body. Remember, important line is this prodrug converted into dopamine in the body and then it will fulfill the deficiency. Again, it is a universal anti-Parkinson drug. Important line है, it is a universal anti-Parkinson drug, ठीक है। मैकेनिज्म में एक्शन क्या है, ये सिर्फ क्या करता है, उसका डिफिशियंसी फुलफिल करता है। मतलब सो मेटाबॉलिक, इट इज अ मेटाबॉलिक प्रिकर्सर ऑफ डोपामाइन. It can cross the blood-brain barrier, as dopamine as such cannot cross the blood-brain barrier, but levodopa can cross the blood-brain barrier because of its lipophilicity and all that. It is a active process mediated by carrier amino acid. This amino acid, carrier amino acid, it is active process. So crossing of BBB by levodopa is an active process, and protein-rich diet inhibits this process. अगर protein-rich diet लेंगे so this process will be inhibited. So that's why protein-rich diet नहीं लेना है उसमें. It is taken up by intrastatial presynaptic terminals of neurostatial dopaminergic neuron. ये dopamine containing neuron में जाएगा, and वहाँ पे dopamine बनेगा उसका metabolism होके, and then dopamine itself, because dopamine itself cannot cross the blood-brain barrier, levodopa is given. So levodopa क्या है, metabolic precursor of dopamine, ये प्रोड्रग होता है, एंड वहाँ पे न्यूरॉन में जाके फिर क्या होगा, सबस्टेंशन नाइग्रा पार्ट में जाके उसका मेटाबॉलिज्म होगा और डोपामाइन रिलीज होगा, ठीक है। नाउ फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ दिस लिवोडोपा. सो सीएनएस के ऊपर क्या है वैसे बेटे, सीएनएस के ऊपर क्या एक्शंस है, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑन द सीएनएस. सो इट इज यूनिवर्सल एंटी पार्किंसन ड्रग एंड इट इम्प्रूव्स ऑल द मैनिफेस्टेशंस ऑफ पार्किंसनिज्म. मतलब जो भी सिम्टम्स है पार्किंसन के वो इम्प्रूव करता है. Okay, so first it will improve the akinesia. Muscular movement, followed by rigidity and tremors. जो rigid मसल बन गया है उसको फ्लेक्सिबल बनाएगा. जो ट्रिमर्स हो रहा है इनवॉल्युंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल उसको नहीं होने देगा, ठीक है. सो दिस ड्रग improves the memory and increases the patient's interest in the himself. Drug is useful in the Parkinsonism because of the manganese poisoning. सो मैंगनीज पॉइजनिंग अगर हुआ है तो उसकी वजह से भी क्या होता है, डीजनरेशन ऑफ डोपामाइनर्जिक न्यूरॉन. सो बिकॉज ऑफ द मैंगनीज पॉइजनिंग आल्सो देयर इज अ पार्किंसनिज्म. सो दिस लेवोडोपा इज आल्सो यूजफुल इन द पार्किंसनिज्म कॉज्ड बाय मैंगनीज पॉइजनिंग, बट नॉट यूजफुल इन द ड्रग इंड्यूस्ड एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स. ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसन डिसीज और ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसन डिसीज हाउएवर डज नॉट रिस्पॉन्ड टू ऑल द लेवोडोपा. मतलब लेवोडोपा is not at all useful in the drug induced Parkinsonism, because drug induced Parkinsonism कुछ ड्रग जो बोला मैंने एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होते हैं फर्स्ट जनरेशन और टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग, ठीक है. बाद में आपको क्लासिफिकेशन आ जाएगा उस टाइम पे.
Typical antipsychotic drugs, for example, chlorpromazine, haloperidol, okay, like that. These drug causes the extra. So highest extrapyramidal symptoms or highest Parkinson symptoms are produced by haloperidol. Haloperidol नाम का ड्रग है, वो सबसे ज़्यादा पार्किंसन करता है. ठीक है. So drug induced Parkinsonism, it is not responded at all by levodopa. Idiopathic dystonia in the children is useful in the idiopathic dystonia in the children and adolescent. Oh, sorry. So idiopathic dystonia in the children and adolescent, it is the adverse effect. It is reported with the levodopa. Levodopa ये dystonia करता है. Cardiovascular के ऊपर क्या इफेक्ट है. So this is due to the peripheral conversion of levodopa into dopamine. So peripheral blood में ही क्या है कि आपका ब्लड में डोपा डिकार्बोक्सिलेज होता है. ब्लड में का डोपा डिकार्बोक्सिलेज जो एंजाइम है वो लीवोडोपा को डोपामाइन में कन्वर्ट करता है और वो डोपामाइन क्या करेगा फिर रिसेप्टर के ऊपर एक्ट होगा. सो हार्ट में जाएगा, बाकी ब्लड वेसल में जाएगा. सो इट विल कॉज ब्रैडिकार्डिया, इट विल कॉज अदर इफेक्ट लाइक. सो on the CVS it acts on the cardiovascular system by acting on a specific receptor, also acts on a renal mesenteric vein, causes the vasodilation, decrease in the blood pressure. It stimulates the alpha 1 receptor in the heart and the positive inotropic effect, but it will not increase the blood pressure. It causes the vasoconstriction by stimulating the alpha 1 receptor in the blood vessels. It can cause it can cause hypotension. Okay, it can cause hypotension. pH मतलब ये आता है postural hypotension. It can cause postural hypotension. Okay. Then on endocrine system, what will this do? On endocrine system, it will inhibit the prolactin release. यहाँ पे जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वहाँ पे दो होता है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी. तो प्रोलैक्टिन कहाँ पे होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में होता है. So it will suppress the posterior pituitary and that's why it will inhibit the prolactin release. Prolactin, hormone responsible for production of milk. Then it will stimulate the growth hormone release. Growth hormone release मतलब ये anterior pituitary में होता है growth hormone. Anterior pituitary is stimulated, posterior pituitary is suppressed by levodopa. So because of the suppression of posterior pituitary, prolactin level will decreased and also suppression of lactation in the human because of that. But growth hormone is increased. देखो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म अगेन सेम थिंग यहाँ पे बोला है. सो इन द पेरीपेरी में क्या हो रहा है? लीवोडोपा ये ड्रग है. सो इट इज मेटाबॉलाइज्ड इन द पेरीपेरी बाय फर्स्ट डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम, ओके, डीडीसी, डोपा डिकार्बोक्सिलेज. ओके, सो दैट इज इनहिबिटेड बाय कार्बिडोपा एंड बेंसेराजाइड. ओके, बेंसेराजाइड डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर कौन सा है? कार्बिडोपा एंड बेंसेराजाइड. याद रखना है आपको ये दो ड्रग. नाउ लीवोडोपा इज आल्सो मेटाबोलाइज्ड बाय COMT एंजाइम, दैट इज कैटेकोलामाइन ऑर्थोमेथाइल ट्रांसफरेज टू फॉर्म ए दैट इज 3-orthomethyl dopa, 3-OMD, 3-orthomethyl dopa. नाउ लीवोडोपा कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर. अगर ये दोनों को इनहिबिट करेंगे द पेरीफेरी, सो मोर अमाउंट ऑफ levodopa will be available in the brain. It can cross the blood brain barrier. The levodopa again in the brain metabolized by this dopa decarboxylase converted into dopamine. Okay. Now this is therapeutically useful. अभी ये आप बोलेंगे सर यहाँ पे डोपा डिकार्बोक्सिलेज को आप इनहिबिट कर रहे हो कार्बिडोपा बेंसेराजाइड से, लेकिन यहाँ पे तो कोई इनहिबिट नहीं कर रहा है. लेकिन यहाँ पे नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे डिजायर्ड है क्या? ब्रेन में लीवोडोपा का कन्वर्जन होना चाहिए, किसमें? डोपामाइन में, तभी तो जाके डोपामाइन का डेफिशिएंसी फुलफिल होगा. ठीक है. इफ देयर इज नो कन्वर्जन ऑफ लीवोडोपा इनटू डोपामाइन इन द ब्रेन, ये कहाँ पे है? ये पेरीफेरी में है. पेरीफेरी मतलब ब्लड वेसल, आपका लीवर वगैरह. यहाँ पे नहीं होना चाहिए कन्वर्जन, यहाँ पे होना चाहिए. यहाँ पे कन्वर्जन होगा लीवोडोपा का डोपामाइन में, तो वहाँ पे एडवांस इफेक्ट मिलेगा, पोस्चर हाइपोटेंशन वगैरह. तो ये नहीं होना चाहिए आपका, लेकिन ब्रेन में होना चाहिए. तो ब्रेन में लीवोडोपा इज कन्वर्टेड डोपामाइन बाय डोपा डिकार्बोक्सिलेज. ये डिजायर्ड है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट इनहिबिटिंग दिस एंजाइम, बट डेफिनेटली वी आर इनहिबिटिंग दिस COMT because COMT will metabolize levodopa into again 3-OMD, 3-orthomethyl dopa. Now dopamine is metabolized by COMT and MAO-B.
So we are inhibiting this MAO-B by using silicillin and resacillin. We are also inhibiting this COMT by tolcapone. Okay. So COMT will metabolize dopamine to 3-MT. 3-MT क्या होता है? 3-MT is nothing but 3-methoxytyramine, and this MAO-B convert dopamine into DOPAC. DOPAC is nothing but the 3,4-hydroxyphenylacetic acid. DOPAC. लास्ट में दोनों का मेटाबॉलिज्म, लास्ट मेटाबोलाइट ऑफ योर लियोडोपा इज नथिंग बट द होमोवैलेनिक एसिड. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. द प्रिंसिपल मेटाबोलाइट ऑफ लियोडोपा, प्रिंसिपल मेटाबोलाइट ऑफ लियोडोपा, नॉट लियोडोपा, इट इज अ प्रिंसिपल मेटाबोलाइट ऑफ ऑल कैटेकोलामाइन. जितने भी कैटेकोलामाइन्स होंगे, नॉरएड्रेनालिन, हिस्टामाइन, ब्रैडिकाइन, ब्रैडिकाइन नहीं, सेरोटोनिन, डोपामाइन, एड्रेनालिन. सो ऑल दिस कैटेकोलामाइन्स दे आर कन्वर्टेड इनटू होमोवैलेनिक एसिड. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. कहाँ पे है क्या होमोवैलेनिक एसिड? होमोवैलेनिक एसिड, that is nothing but 3-methoxy-4-hydroxyphenylacetic acid. Homovalenic acid is the principal metabolite. Okay, so next is nothing but the absorption, distribution, metabolism, elimination of this levodopa. Okay, so it is a rapidly absorbed. Okay, more than 95% of absorption is more than 95%. 95% से ज़्यादा absorb होता है rapidly from the intestine. But levodopa is taken orally is rapidly decarboxylated. यहाँ पे क्या होगा? Decarboxylation होगा उसमें, किसमें? GIT lumen में. It is a decarboxylated into lumen of GIT, and also it has a first pass effect. Less than only 1%. Less than 1% reaches to a brain. ब्रेन में बहुत ही कम मात्रा में जाता है, and that's why. Hence, this is the reason why we are using carbidopa. We are using benzerazide. Okay. Hence, large doses of levodopa is required, and the enzyme known as a peripheral dopa decarboxylase. So that enzyme require a pyridoxine or pyridoxal as a cofactor. So pyridoxine मतलब vitamin B6. So that increases the peripheral metabolism of levodopa, and that's why levodopa is not given with the pyridoxine. क्योंकि pyridoxine क्या है? It is a cofactor. Pyridoxal pyrophosphate is a cofactor for peripheral dopa decarboxylase, and which metabolizes the dopamine. Okay, and that's why which metabolizes the levodopa, and that's why pyridoxine accelerates the metabolism of peripheral. Pyridoxine is a cofactor for peripheral dopa decarboxylase, and that's why peripheral metabolism is increased by pyridoxine. Peripheral metabolism of levodopa is increased by pyridoxine. So that's why levodopa and pyridoxine are incompatible. So they have a drug interaction. Now that's why levodopa जो है ना, only 1% is reached to a brain, and that's why levodopa is always combined with. It is combined with the carbidopa. Why it is combined with the carbidopa? To prevent the peripheral decomposition of levodopa, as carbidopa is nothing but the peripheral decomposition inhibitor. Therefore, more amount of levodopa will be available in the brain. And इसके ऊपर आपको कैसे क्वेश्चन आता है, देखो आपको कैसे घुमाएंगे. मतलब यहाँ पर मैंने 2 लाइन में बोला है कि carbidopa is a peripheral dopa decarboxylase inhibitor, and that's why levodopa and carbidopa they are combined together. levodopa carbidopa combine किए जाते हैं. क्यों? क्योंकि carbidopa क्या करेगा? पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज को इनहिबिट करेगा. पेरीफेरी में levodopa का मेटाबॉलिज्म नहीं होने देगा, ताकि ज़्यादा levodopa कहाँ पे जाए? ब्रेन में जाए. अभी क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा. असर्शन, ओके, असर्शन ए एंड रीजन आर देंगे आपको. ठीक है, आपको बोलेंगे levodopa एंड carbidopa आर कंबाइंड टुगेदर. असर्शन ये, रीजन क्या देंगे? carbidopa इज पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर. ओके, ये देंगे और आपको ऑप्शन ए मिलेगा. ओके, असर्शन ए इज करेक्ट, रीजन आर इज करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट रीजन फॉर ए. ऑप्शन बी में देंगे ए, assertion A is correct, reason R is also correct, but R is not a correct reason for A. थर्ड ऑप्शन में देंगे आपको A is correct, assertion is correct, reason is correct. Okay, assertion is correct, reason is wrong. ऐसे देंगे, reason is incorrect. लास्ट ऑप्शन में देंगे assertion is wrong, reason is correct. मतलब आपको घुमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं. ठीक है, बट आपको कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आपको कैसा भी क्वेश्चन आएगा. ठीक है, आना ही चाहिए. Then high protein diet will interfere the absorption of levodopa. High protein diet will interfere the absorption of levodopa. Now it is metabolized by 2 enzymes. We have seen 2 enzymes, MAO and COMT. Both enzymes in the periphery. Metabolite is nothing but the
homovalenic acid, and some amount of this levodopa is also converted into noradrenaline. एडवर्स इफेक्ट क्या है? इसके एडवर्स इफेक्ट दो फेजेस में होते हैं, एक अर्ली टॉक्सिटी एंड एक लेट टॉक्सिटी. सो अर्ली टॉक्सिटी में क्या होगा? सो अर्ली टॉक्सिटी, सो जीआईटी में होगा नॉशिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया बिकॉज ऑफ द इट्स एक्शन ऑन सीटीजेड. ओके, कार्डियोवास्कुलर के ऊपर क्या है? एडवर्स इफेक्ट पोस्चरल हाइपोटेंशन, palpitation, sinus tachycardia, increased AV conduction. लेट टॉक्सिटी, ओके, लेट टॉक्सिटी में क्या होगा? बिहेवियरल टॉक्सिटी, सो एजिटेशन, कंफ्यूजन, रेस्टलेसनेस, हाइपोमेनिया, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, डिप्रेशन एंड सुसाइडल अटेम्प्ट्स. सीएनएस के ऊपर क्या एडवर्स इफेक्ट? लॉन्ग टर्म थेरेपी रिजल्ट इन द एबनॉर्मल मूवमेंट, दैट इज नोन एज द डिस्काइनेशिया. इसको बोलते हैं डिस्काइनेशिया. आप बोलेंगे सर आपने बोला ही नहीं उसका एडवर्स इफेक्ट डिस्काइनेशिया है, तो इसको ही बोलते हैं डिस्काइनेशिया. एबनॉर्मल मूवमेंट मीन्स डिस्काइनेशिया. देन कोलेस्थेटोसिस इन्वॉल्विंग नेक, हेड, समटाइम्स इवन एक्सट्रीमिटीज. तो मतलब यहाँ पे डिस्काइनेशिया होगा, प्रॉपर मूवमेंट नहीं होगा. सिम्टम्स सिमिलर टू न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम रिलीव. मिसलेनियस क्या है? समटाइम्स पेशेंट शो पॉजिटिव कोम टेस्ट, ये एंटीजन टेस्ट होता है. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, विच ड्रग शोज पॉजिटिव कोम टेस्ट, विच ड्रग शो पॉजिटिव कोम टेस्ट. और नेक्स्ट इसमें जब देखेंगे तब बोलूँगा मैं आपको, ठीक है, कोम टेस्ट. ओके, लियोडोपा विल गिव यू पॉजिटिव कोम टेस्ट. ओके, सो राइज इन द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, it causes the real correlation of urine, false positive test for ketone bodies. It also with the deep seek test, ketone bodies का false test देगा, मतलब टेस्ट तो पॉजिटिव आएगा लेकिन ketone bodies नहीं देंगे. सो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है एडवर्स इफेक्ट. नेक्स्ट इज ड्रग इंटरेक्शन ऑफ लियोडोपा. ड्रग इंटरेक्शन ऑफ लियोडोपा. लियोडोपा विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग इफ इज यूज्ड इन द पेशेंट विद एक्टिव पेप्टिक अल्सर. पेप्टिक अल्सर जिसको उसमें यूज़ करेंगे तो ये ब्लीडिंग करेगा. देन मैलिग्नेंट माइलोनोमा, ये लियोडोपा इज प्रिकर्सर फॉर मेलेनिन. लियोडोपा का प्रिकर्सर फॉर मेलेनिन होता है एंड शुड बी कॉशियसली यूज्ड इन द पेशेंट विद मैलिग्नेंट माइलोनोमा. देन विथ माओ इनिबिटर्स मे प्रिसिपिटेट द सीवियर हाइपरटेंशन, क्योंकि माओ इनिबिटर्स अगर यूज़ करेंगे तो वो कैटेकोलामिन का लेवल बढ़ा देगा, और ये भी क्या है कैटेकोलामिन, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा. विद द पेरिडोक्सिन और विटामिन B6, सो एक्सेलरेशन ऑफ पेरीफेरल मेटाबॉलिज्म ऑफ लियोडोपा, क्योंकि पेरिडोक्सिन क्या है? पायरिडोक्सिल पायरोफॉस्फेट इज अ को फैक्टर फॉर योर पेरीफेरल डोपा डिकार्बोसिलेज. सो दैट्स व्हाई concurrent use of pyridoxine and levodopa will increase the metabolism of levodopa. ठीक है, याद रखना है आपको. समझ में आया? रेजरपिन is nothing but the anti-hypertensive drug which is known as a catecholamine depleter. Okay, so blocks the effect of dopamine. तो अगर ये डिप्लीट करता है तो उसका जो इफेक्ट है, so it will decrease the effect of levodopa because it is a catecholamine depleter. Then methyl dopa is known as a false transmitter, increases the adverse effect of levodopa. एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के साथ में क्या है इसका इनकॉम्पेटिबिलिटी? इट इंक्रीजेज द डिग्रेडेशन इन द स्टमक, क्योंकि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग इंक्रीजेज द डिग्रेडेशन ऑफ इन द स्टमक लियोडोपा का. एनेस्थेटिक ड्रग के साथ में क्या है? लियोडोपा इंक्रीजेज द कार्डियक टॉक्सिसिटी ऑफ हैलोथिन एनेस्थेसिया. एक बार है ना, इसको सेव कर लेता हूँ, टाइम